A very good morning, class 9th. So today in this video we're going to start with a topic named factor theorem. In the previous video we have gone through remainder theorem and its related questions. And guys, factor theorem is almost similar to remainder theorem. So let's start the factor theorem and let's understand what is this all about. Now, before starting this theorem, I will give you a small example to let you understand the concept. Now if you see, if I divide this 12 with 4, 4 3s are 12, remainder comes out to be 0. So I would say 4 is factor of 12. 4 is factor of 12. And if I divide 15 with or the 12 with 5 and the remainder comes out to be 2, then I will say that 5 is not factor of 12. Okay. Now, from these two things, what we can observe, when the remainder comes out to be 0, then it is a factor, and when there is certain remainder, then it is not a factor. And in remainder theorem, if you see, what was the statement? If we divide something with x minus a, then p of a, that if we change or if we put instead of x every time we put that value, then at the end what is the value of p of a? If it comes whatever is the value, that becomes the remainder. तो similarly यहाँ पे remainder हमेशा क्या होने वाला है? 0. Okay, तो अभी हम क्या यहाँ पे infer कर सकते हैं? If p of a comes out to be 0, then x minus a is the factor. And if p of a gives certain value that is not the factor, then that value will be the remainder. तो यही इसकी definition है. Let px be a polynomial of degree greater than 1 or equal to 1 and a be any real number such that p of a is 0. अगर मेरा वैल्यू पुट करके वो वैल्यू 0 आ जाती है, then I would say x minus a is a factor of px. तो x minus a उसका factor हो जाएगा. Instead, if this statement please go through, if x minus a is a factor of px, then p of a is 0. तो याद रखना, conversely the result is also true. अगर x minus a किसी का factor है, then we can say that p of a is 0. अब ध्यान से देखना, I have got these three questions for you. It says show that x minus 3 is a factor of this. तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? 3, ये a एक्ट कर रहा है. उसने ये कहा ना, show that x minus 3 is a factor of this polynomial. अगर x minus a फैक्टर है पॉलिनोमियल का, then p of a हमेशा 0 होगा. तो अगर मैं यहाँ पे शो कर दूं that by putting x minus 3 is equal to 0, put x minus 3 is equal to 0, तो x की वैल्यू मेरे पास बेटा क्या आ गई? 3 आ गई. सो अगर ये इसका फैक्टर है तो p of 3 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो लेट्स फाइंड यूजिंग फैक्टर थ्योरम. Using factor theorem, if p of 3 is equal to 0, then x minus 3 is factor of px. ठीक है जी. तो let's find p of 3. p of 3 will be 3 cube minus 3 into 3 square plus 4 into 3 minus 12. So 3 into 3 cube is 27, 3 square is 9, 9 3 is 27, plus 4 3 12 minus 12. 27 cancel, 12 cancel, so it comes out to be 0. So as p of 3 is equals to 0, so therefore x minus 3 is factor of px. Clear? अब देखिए वहां पे रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी, अगर यहां पे 0 की जगह कोई वैल्यू आ जाए, बिल्कुल सेम है कॉन्सेप्ट. अगर यहां 0 की जगह कोई वैल्यू आ जाए, वो हमेशा क्या कहलाएगा? रिमाइंडर. अगर 0 आ जाए तब भी दैट मींस रिमाइंडर इज 0. बात तो एक ही है. और रिमाइंडर जब भी 0 होता है तो whatever is my divisor is the factor of dividend. Is that clear? Let's do one more question. Show that x minus 1 is factor of both this. तो अब मेरे पास दो वैल्यूज दे दी गई हैं. एक let px is equals to x की पावर 10 minus 1. हाँ, पुट x minus 1 is equal to 0. तो अगर मैं x minus 1 को 0 पुट कर रहा हूं
तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 1। तो अगर ये फैक्टर कब होगा, जब p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लेट्स फाइंड इट आउट। x की जगह रिप्लेस 1 से कर दिया, 1 की पावर 10 minus 1. So 1 की power 10 is 1 minus 1, which is 0. So as p of 1 is 0, so therefore x minus 1 is factor of px. Is that clear? तो यहां पे दो फंक्शंस दे दिए गए हैं, दो पॉलिनोमियल्स दे दिए गए हैं। लेट g of x, तो मैंने या f of x लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, x की पावर 101 minus 1। तो यहां पे भी फिर से वही g of 1 पे चेक करें, क्योंकि x की वैल्यू 1 आई थी। So g of 1 will be 1 की पावर 101 minus 1, and we know 1 की पावर anything is 1. So this comes out to 1 minus 1 0. So as g of 1 is equal to 0, so मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं x minus 1 is factor of इसका gx. So it implies from both the statements that x minus factor is a factor of both x की power 10 minus 1 and x की power 101 minus 1. Okay, another question. It says show that x plus 1 and 2x minus 3 are the factors of this. खुद सोचो, ये क्यूबिक है तो इसके तीन फैक्टर्स हो सकते हैं, तीन जीरोस हो सकती हैं। तो कह रहे शो दैट दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। तो हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स और एक पॉलिनोमियल है और दो फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट पुट x माइनस 1 सॉरी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो अगर p ऑफ -1 0 आ गया तो x प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 क्यूब -9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 सॉरी प्लस इंटू -1 प्लस 12। तो दिस कम्स आउट टू बी -1 का क्यूब -1 -2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू -9 इज -9 प्लस माइनस प्लस 12। 9 तो 11 और 1 12, सो 12 minus 12 is 0. So as p of -1 is equal to 0, so मैं क्या कह सकता हूं, x plus 1 is factor of px। तो ऐसे ही सेकंड पार्ट क्या है, 2x minus 3, इसको चेक कर लेते हैं। पुट 2x plus minus 3 is equal to 0, so therefore x की वैल्यू क्या आ गया बेटा, 3/2। तो अगर x की वैल्यू 3/2 है, लेट्स पुट इट ओवर हियर। p of 3/2 will be equal to 2 into 3/2 का होल क्यूब माइनस 9 into 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 का क्यूब 8 हो गया और 8 और 8 4 आ गया, नीचे तो 4 आ गया। 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 9 से 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। So denominator comes out to be 4. 27 minus 81 plus 4, 3 2s are 6 and 1 है तो 12 4s are 48 is equal to. So guys 48 and 6 54, 54 and 7 61 and 21 81. So 81 minus 81 over 4 which is 0.4 and is equal to 0. So therefore 2x minus 3 is factor of px. So if you see what is the difference between this theorem and remainder theorem? रिमाइंडर में क्या होता था कि वो एक रिमाइंडर देता था, कभी भी ये वैल्यू 0 नहीं आती थी क्योंकि यही रिमाइंडर होता था। यहां पे ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो अगर 0 आ गया तो वो क्या बन गया, फैक्टर बन गया। सो another set of questions, it says find the value of k x plus 3 is factor of this। अब इस क्वेश्चन में क्या कह दिया कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो p ऑफ x की वैल्यू -3 अगर करते हैं, पुट x plus 3 is equals to 0, तो x की वैल्यू आ गई -3। तो अगर ये इसका फैक्टर तो हम कैसे लिखेंगे, as x plus 3 is factor of px, ये गिवन है हमें। तो what I can say, this implies that p of -3 जो x की वैल्यू 0 पे पुट करते हैं will be equal to 0 क्योंकि ये फैक्टर है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो लेट्स
put all the values of x as minus 3 square plus k into minus 3 plus 6 is equal to 0. So now only one variable is left, which is k. So minus 3 square is 9, 9 3s are 27, minus 3k plus 6 is equal to 0. So 26 plus 6 33, so minus 3k plus 33 is equal to 0. तो माइनस 3k इज इक्वल्स टू माइनस 33, तो माइनस माइनस कैंसल, k कितना आ गया बेटा 33 डिवाइडेड बाय 3 which is 11. So therefore k comes out to be 11. Exactly same kind of questions we have done in remainder theorem also. Again another question, find a for which px is divisible by this. अब अभी हमने एग्जांपल की थी 4 is a factor of 12. वो 4 फैक्टर कब था? जब 4 12 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा था. पूरी तरह डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 था. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एज px is divisible by 1 minus 2x, तो this implies that 1 minus 2x is factor of px. समझ पाए इस चीज को? तो वो उसका फैक्टर है. तो अगर वो उसका फैक्टर है तो यहां पुट करते हैं, पुट 1 minus 2x is equals to 0, minus 2x is equals to minus 1, तो x comes out to be 1 by 2. ठीक है जी, हम क्या लिखेंगे, this implies that p of 1 by 2 should be equal to 0. तो ऐसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किए, तो सारी वैल्यू x की 1 by 2 से रिप्लेस कर दो. सो 2 into 1 by 2 की पावर 4, a into 1 by 2 की पावर 3 प्लस 4 into 1 by 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 1 by 2 प्लस 1 is equal to 0. So 1 by 2 की पावर 4, 1 by 16, 2 से कटा तो बटा 1 by 8 माइनस a अपॉन 8, क्योंकि 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कट के बचा 1, 2 2 कटे बचा 1 एंड 1 इज इक्वल टू 0. तो माइनस a by 8 को मैं उधर ले गया तो प्लस a by 8 आ गया. ठीक है, इधर क्या बचा, 1 plus 1 plus 1 3, 3 plus 1 by 8, 1 by 8 plus 3. So LCM लिया 8, 1 plus 24 is equal to a by 8, और 8 8 दोनों साइड पे क्या हो गए, कैंसल. सो a की वैल्यू क्या आ गई 25. Is it clear? Okay students, question is and mark this question as very very important. बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. सो दो अननोन है, तो जब भी मैथ्स की दुनिया में आए ना कि दो अननोन है, तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए हम सबके कि भाई इसकी दो इक्वेशंस बनेगी. अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशंस बनेगी ही बनेगी. ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल, दिस इज माय पॉलिनोमियल, इसको मैं px ले लेता हूं, हैज x minus 1 and x plus 3 as factors. तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं. अगर दोनों फैक्टर हैं तो फैक्टर थ्योरम से p of 1 and p of minus 3 0 आ जाए. ठीक है, तो देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है. as p of as x minus 1 ऐसे लिखते हैं, minus 1 is factor of px, is factor of px. तो this implies that x minus 1 को 0 पुट दिमाग में भी कर सकते हो. तो p of 1 क्या बना, 0 बना. तो 1 की वैल्यू रिप्लेस कर दो x के साथ, 1 क्यूब माइनस a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? तो ये क्या बना, 1 माइनस a, 1 स्क्वायर 1 इंटू a नेगेटिव था, नेगेटिव आ गया, माइनस 13 प्लस b इज इक्वल टू 0. तो माइनस a प्लस b, देखो यहां पर ना 1 माइनस 13 इज माइनस 12, तो माइनस 12 उस साइड जाके क्या बन गया, प्लस 12. तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b. अब आगे आ जाए, एज x प्लस 3 भी फैक्टर है, x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ px. तो अगर a फैक्टर है तो मैं x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3 आ गई, 0 पुट कर दे, तो p ऑफ माइनस 3 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. तो माइनस 3 का क्यूब माइनस a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू माइनस 3 प्लस b शुड बी इक्वल टू 0. माइनस 3 का क्यूब माइनस 27, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू a माइनस 9a, माइनस माइनस प्लस 39 प्लस b इज इक्वल टू 0. ठीक है,
अब -9a प्लस b इज इक्वल टू, देखो -27 प्लस 39, 39 माइनस 27 होता है 12, तो दूसरी साइड जाके क्या बन गया -12। तो गाइस वी हैव गॉट टू इक्वेशंस। हाँ, तो अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो ये बना -a प्लस b इज इक्वल टू 12 एंड -9a प्लस b इज इक्वल टू -12। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, b और b कट जाएंगे, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो सबके नीचे साइन चेंज हो गया, सॉरी माइनस का बन गया प्लस और माइनस का बना प्लस, प्लस का बना माइनस, b और b क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब b 9a प्लस बन चुका है, 9a माइनस a 8a इज इक्वल टू 12 प्लस, क्योंकि ये भी प्लस बन चुका है माइनस का साइन लगाने से, प्लस 12 इज 24। तो a की वैल्यू क्या आ गया बेटा 24 डिवाइडेड बाय 8, तो a कम्स आउट टू बी 3। तो अगर a 3 आ गया किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, पुट इन इक्वेशन, पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो -3 प्लस b इज इक्वल टू 12, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 एंड दिस इज माय आंसर। a is 3 and b is 12. Very important kind of questions. So this next question is a quite similar question as per the last question, but एक छोटा सा ट्रिक कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहता है, if this is my polynomial, if this polynomial x has x plus 2 as a factor, तो ये इसका फैक्टर है, तो मतलब p of x को प्लस 2 को 0 पुट करो, p of -2 0 आ जाएगा, एंड लीव्स अ रिमाइंडर 4, और रिमाइंडर 4 है जब ये किससे डिवाइड होता है x -2 के साथ, मतलब यहां पे लगेगी फैक्टर थ्योरम और यहां पे लगेगी रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड a and b। सो दिस अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सबसे पहले लिखते हैं, तो अगेन a and b टू अननोन, तो टू इक्वेशंस, एज x plus 2 is factor of px, तो therefore p of x plus 2 को 0 पुट किया तो p x की वैल्यू -2 आ गई, p of -2 will be equal to 0। तो a into -2 का क्यूब, b into -2 का स्क्वायर प्लस -2 -6 is equal to 0। Is this clear? So -2 का क्यूब -8, -8a -2 का स्क्वायर 4, 4b -2 -6 is equal to 0। तो बेटा -8a प्लस 4b इज इक्वल टू -8 बना, उधर जाके बन गया +8। अगर आप ध्यान से देखो हर जगह 4 कॉमन है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4 अगर कॉमन ले आऊं, इधर आया -2a प्लस b इज इक्वल टू 8, और ये 8 4 इधर के डिवाइड हो गया, तो क्या बचा -2a प्लस b इज इक्वल टू 4 और इज इक्वल टू 2, सॉरी जस्टिफाइड, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आ जाओ आगे अगली सिचुएशन, इट लीव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x -2। तो अब क्या लिखेंगे, एज px when divided by x -2 leaves remainder 4, so therefore मैं क्या कह सकता हूं, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, x -2 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 2 हो गई, तो therefore p of 2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा 4। सो पुट कर देते हैं, a इंटू 2 का क्यूब प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 -6 इज इक्वल टू 4, 8a क्यूब 4b स्क्वायर 2 -6 इज -4 उधर जाके +4 हो गया, 4 + 4 8, फिर से 8 कॉमन निकला, सॉरी दिस इज मैं कुछ गलत कर गया बेटा, 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8, तो फिर से 4 कॉमन आया, तो क्या बचा 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। आई होप यू अंडरस्टैंड, कि दोनों तरफ 4 4 निकला और कटिंग हो गई। तो आई हैव गॉट 2 इक्वेशंस अगेन लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। तो 2a प्लस b इज 2 और इधर है -2a प्लस b इज 2। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 2a और -2a ऑलरेडी कट रहे हैं, काट दिया, b प्लस b ऐड कर दिया दोनों को,
2b is equal to 2 to 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इज दैट क्लियर? पुट करने किसी भी एक इक्वेशन में, पुट b is equals to 2 in equation number 2, so 2a plus 2 is equals to 2, तो 2a is equals to 2 कट गए, उधर जाके नेगेटिव हो गया, 0, a की वैल्यू क्या गई 0.2 और एनीथिंग in the denominator of 0 is 0. So a's value is 0 and b's value is. Next question again, very important question. It says if both x minus 2 and x minus 1 by 2 are the factors of this polynomial, then show that p is equal to r. So let's start. As x minus 2 is factor of px, so therefore p of 2, x minus 2 को 0 पुट कर दिया, p of 2 should be equal to 0. So p into x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 2 पुट कर दूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 2 plus r is equal to 0. So this comes out to be 4p plus 5 2s are 10 plus r is equals to 0. Is that clear? Another, as x minus 1 by 2 is a factor of px, then p of 1 by 2, again you know this step now, so therefore p of 1 by 2 ka square plus 5 into 1 by 2 plus r should be equal to 0. So ये बन गया p by 4 plus 5 by 2 plus r is equal to 0. If you take the LCM, 4 p plus 2 5 2s are 10 plus 4 r is equal to 0. तो ये 4 उधर जगह 0 ही बन गया, क्या बना p plus 10 plus 4 r is equal to 0. So beta we have two equations and both are equal to 0. So what I can say, from 1 and 2, let it be equation number 1, let it be 2. So from 1 and 2, can I say 4p plus 10 plus r should be equal to p plus 10 plus 4r. 10 10 दोनों साइड पे कैंसिल हो गए, 4p ये p इधर आके नेगेटिव कर दो, तो 4p minus p 3p is equal to 4r, ये r उधर जाके माइनस कर दो 3r. So 3 3 भी दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कट गए, तो p is equals to r. That is what we need to do. Clear? Okay guys, before moving further, this factor theorem is itself a very wide topic. Okay, today I have covered one type of questions when you have a factor and you have a polynomial and you can have the relationship between the two. Okay, apart from that, in the next upcoming videos I will be discussing two very important concepts, that how to factorize a quadratic equation, which I was discussing in the previous one also, quadratic equation, and how to factorize a cubic equation. Do not miss this video, very very important concept, and using like quadratic equation using the factor theorem, and the most important concept is called splitting the middle term. So these two topics we will be discussing in the next video, and we'll be touching base up with the cubic equation, and we'll be sharing few questions for your homework. Please do that, and thank you so much.